Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are here for the purpose of discussing basics of regression analysis today. Now, when you talk about quantitative techniques in business, we need to manipulate multiple decisions. We need to take multiple areas into consideration on the basis of our prediction, because everything is not clear to us. And if things are not clear to us, so on the basis of the given set of information, we used to predict future. That future is unseen, of course, but this future is based on the specific variables or the specific, you can say, the areas which are there in consideration once you are taking the future predictions. So in today's lecture, we'll be enclosing the concepts of regression, that what actually regression is, what is meant by linear regression, and we'll slightly touch multiple regression. But as the basics of, if you learn the basics of regression and linear regression, you can by all means manipulate results on multiple regression techniques as well. So therefore we'll not be touching them in detail, or if you use any of the modern softwares like SPSS or Stata or EMOS kind of. So in that as well, the multiple regression techniques are very widely used, and there is no need to cram the tables and cram the formulas and all these tabulish material. Everything can be easily attained through these softwares, but the important area is again the reference towards the interpretation, that how you interpret the results. So in this particular course, we will be definitely talking about linear regression, but I'll give you this small slight concept of multiple one, but we'll not be going into the details of multiple regression and their applications and their relevant examples. So we'll be just sticking together tied with the regression and linear regression models. We'll be talking about methods of calculating regression, that how many methods are there for the purpose of calculating regression analysis. Why this particular regression analysis is there? मतलब अगर हमने टाइम सीरीज़ को भी प्रिडिक्शन के पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया और हमने मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज़ कंसिडर की उस पर्टिकुलर एरिया में, टाइम सीरीज़ के केस में भी, और हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया हाइपोथेसिस टेस्टिंग में उसमें भी हमने प्रिडिक्ट करना चाहा कि what is right and wrong towards the decision. But why there is a need to learn about regression, that is something which is very important to know here. Because when you talk about practical environment, you talk about multiple areas or multiple type of variable factors affecting a single problem. Right? What is this? We'll be discussing in detail in a moment, but I just want you to get a foundation of that. When we talk about regression, we talk about multiple variables attaching or integrating in a specific problem. So what is particularly the coefficient of regression towards the linear perspective? What is Pearson regression analysis, R-square and ANOVA? We'll be touching them slightly and interpreting their results as well. So let's start from the beginning, that how we basically empower regression towards the future predictions. So there are many statistical investigations in which the main objective is to determine if relationship exists between two or more variables or not. Meaning, once you're talking about a field or a specific area, that specific area has multiple variable factors as well as constant factors. For example, अगर हम बात करते हैं कि जो productivity है एक organization की employees के reference से, उसमें जो employees हैं उनके multiple productivity जो है वो employees से related है. Meaning अगर employees satisfy होंगे अपनी job से, तो वो उनकी productivity बेहतर होगी और definitely उनका जो outcome है towards the job वो बेहतर होगा. लेकिन अगर हम employees के ऊपर discussion करें कि एम्प्लॉइज अगर हमें प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें वी एज अ बिजनेस आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्टिविटी. सो बट प्रोडक्टिविटी इज बीन अफेक्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज. सो एम्प्लॉइज आर हैविंग मल्टीपल फैक्टर्स विद देम
which affects their productivity. Now, these variable factors might be there existing in one individual and not in the other one. So we used to take multiple variable factors in order to anticipate, in order to predict the future productivity with reference to the employees. कि अगर employees के ऊपर हमने बात करनी है तो employees में ऐसे कौन से variable factors होते हैं या employees में ऐसे कौन से areas होते हैं, like for example जो turnover है, जो salary arrangements है, या जो working hours है, या जो employee relationing है with each other, और the boss employee relationship है, या इक्विपमेंट अंडरस्टैंडिंग है, जिस इक्विपमेंट के ऊपर एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग है. तो ये 4-6 एरियाज हमने एक स्पेसिफिक जॉब के अंदर एनालाइज किए हैं कि अगर ये 4-6 एरियाज बेस्ट रिजल्ट शो कर रहे हो तो प्रोडक्टिविटी बेस्ट होगी. लेकिन ये सारे के सारे बेस्ट नहीं हो सकते क्योंकि एम्प्लॉय एक ह्यूमन इंडिविजुअल है और उसके अंदर वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल क्वांटिटीज में एग्जिस्ट करते हैं. कुछ के केस में एम्प्लॉय रिलेशनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है to determine productivity. कुछ के केस में interference with the machine is an important element towards determining the productivity. So there might exist the multiple factors which affect the productivity. So therefore, when you talk about the relationship between variables, that one variable is affecting the other variable or the independent variable is affecting the dependent variable, so in that case you need to know information about two elements, both the elements. That what are the variable factors of independent variable which are affecting the dependent one. So when you are talking about two perspectives, that is the independent or dependent variable, तो उन दोनों के केस में हमारी जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी वो बेसिकली डिटरमिन करती है, वो बेसिकली डिस्क्राइब करती है रिग्रेशन एनालिसिस के कितना एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर सकता है. तो ये हमें कहाँ से पता लगेगा? ये हमें रिग्रेशन से पता लगेगा. So therefore we use mathematical formulas for making predictions to make it more authentic in judgment and more authentic in predictions. Prediction will depend on the strength of the reliability of any prediction will depend on the strength of relationship between variables under consideration. So definitely we assign multiple mathematical formulas and mathematical equations to create predictions for future, and these predictions are accurate, more reliable if the relationship between variables are strong. अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में हम प्रेडिक्शंस कैसे दे सकते हैं? अगर एक वेरिएबल दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा या वीकली अफेक्ट कर रहा है तो उन दोनों के रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑन रिलायबल बेसिस, या जो रिजल्ट्स आएंगे वो वैलिडेट नहीं हो सकेंगे. फ्यूचर के अंदर उनकी जो फ्यूचर में उनके अंदर जो चेंजेस आने का चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ द इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स रिग्रेशन. आई होप कि एक फाउंडेशन आपकी इस्टेब्लिश हो गई होगी कि हम किस एरिया के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं. Now, a slight discussion about the linear regression, and definitely we will be continuing it in depth कि किस तरह से हम linear regression को calculate करते हैं और basically linear regression होता क्या है. So mathematical equation that allow us to predict values of one dependent variable from the known values of one or more independent variable is called regression equation. ये एक regression equation है जिसमें हमने अभी बात की कि जो mathematical equation होनी चाहिए ताकि हमारे पास quantitative results आ सकें, हम उन quantitative results को justify कर सकें towards making predictions. तो उस केस में y is equals to a plus bx, ये जो हमें equation given है, इस equation के ऊपर इस इक्वेशन में हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल्स हैं. एक है y which is the independent variable, the dependent variable, and x that is the independent variable. तो independent variable वो फैक्टर है जिसके अंदर अगर हम चेंजेस लेकर आए, अगर ये एक वैल्यू है, अगर ये इक्वेशन है तो इसके अंदर हम x की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे 1 2 3 अप टिल n तक, तो डेफिनेटली y की वैल्यू भी चेंज होगी. इसलिए क्योंकि x b से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और a उसमें ऐड भी हो रहा है. तो इन दैट केस जो y की वैल्यू है वो डिटरमिन होगी x की वैल्यू की बेसिस के ऊपर. x हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं
और उन मल्टीपल वैल्यूज की बेसिस के ऊपर जो वेरिएंट चेंजेस आते हैं y के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर वो रीडेबल है। तो ये रिलेशनशिप पता लग रही है इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स की कि x का y से क्या ताल्लुक है, या x y के ऊपर कितना रिलाय करता है, या x की चेंजेस से y के अंदर कितने चेंजेस आते हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज द इक्वेशन, जहाँ पर b जो है वो हमें स्लोप बताता है। अगर हम इसके ऊपर कर्व फिटिंग करते हैं, जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो स्लोप है, जो लाइन की जो स्लोप आती है जिसको हम स्टीप कहते हैं या स्ट्रेटन कहते हैं, वो किस तरह की है, वो बहुत ज़्यादा स्टीप है या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटन है। सो उस केस में हम b को जो है b से मेजर करते हैं उसकी स्लोप, जिसके अंदर हम चेंजेस को डिस्कस करते हैं। और a जो है वो हमारा y इंटरसेप्ट होता है कि y के हेड में, यानी कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ ग्राफ, तो y एक्सिस के ऊपर हमारी वैल्यूज किस पॉइंट से स्टार्ट होंगी ये हमें पता लगता है a से। Statistical technique, linear regression is a statistical technique that uses a single independent variable x to estimate a single dependent variable y. Simple is that. Regression line, जो simplest regression line है वो है a y is equals to a plus bx. अगर हम इसमें multiple variables को add करें तो हमारे पास y is equals to a plus bx1 plus bx2 भी होता है, ठीक है, प्लस सो ऑन अप टिल bxn हो सकता है। मतलब हम मल्टीपल वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं टू डिटरमिन द y वैल्यू। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक वेरिएबल ऐसा नहीं है जो कि y की वैल्यू को डिटरमिन कर रहा है, बल्कि मल्टीपल और वेरिएबल्स भी हैं जो कि हम रिग्रेशन लाइन के अंदर जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन वो मल्टीपल रिग्रेशन का केस है। लीनियर के केस में हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेसिस के ऊपर एक डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होने वाले रिस्पॉन्सेस को कैलकुलेट करते हैं। So that is the most simplest equation on the basis of which we create relationship. So a statistical technique that uses a single independent variable x to estimate a single dependent variable y. Meaning x की relationship हम y की x की basis के ऊपर हम y की relationship को determine करते हैं। x हमारे पास independent variable है जिसमें हम independently values को place करते हैं, और y हमारा dependent variable है जिसमें independently placed values अपना role create करती हैं to analyze the y values. So based on the equation for a line, we talk about y is equals to b plus mx, where m is the coefficient of x and b is the y intercept. Now, अगर इस सिंपल सी इक्वेशन को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो डेफिनेटली अभी हमें y की वैल्यू तो मालूम नहीं है, इस वजह से हम इसको एक रैंडमली इनिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर इट्स नॉट टचिंग द y एक्सिस हेयर, so therefore because we don't know actually the y intercept, we don't know exactly the value of y, so therefore we are just describing in general कि लीनियर रिग्रेशन के ऊपर की जो लाइन है उसकी शक्ल कैसी सी होगी। So that is something which shows y is equals to b naught plus b1 beta naught plus beta 1 x, जिसमें beta naught जो है वो y intercept बताता है, as it is not given to us, that is why we have taken a value from a distance to the y axis. And beta 1 determines the slope. Slope का मतलब ये है कि अगर आप इस लाइन को determine करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कितनी परसेंट चेंज आता है x वैल्यूज के अंदर जो कि नोटेबल होता है y वैल्यूज में। तो x का कितना चेंज y वैल्यूज को डिटरमिन कर रहा है, दैट इज समथिंग विच डिस्क्राइब्स द स्लोप। अगर इस लाइन का स्लोप ये है तो हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू बीटा 1 की आएगी, लेकिन अगर ये लाइन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्टीप हो जाती है इस तरह से, तो डेफिनेटली इसका जो स्लोप है वो फ़र्क हो जाएगा। यू कैन सी द डिफरेंस फ्रॉम हेयर कि यहाँ पर इन दोनों का जो स्लोप्स है वो चेंज हो जाएंगी। स्लोप्स का बेसिकली मतलब ये है कि उसमें कितनी स्टीपनेस है, वो उसका जो उसकी डायरेक्शन है वो किस तरह से प्लॉट हुई भी हमें नज़र आ रही है ग्राफिकली। सो दैट इज़ अ जनरल मॉडल फॉर लीनियर कर्व रिग्रेशन लाइन। ये जो मॉडल है वाई आई इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी वन बीटा 1 एक्स आई प्लस ई आई। ये जो ई है ये डिटरमिन करता है, ये हमने पॉपुलेशन के ऊपर फार्मूला, पॉपुलेशन को अगर हम स्टडी करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को अगर हम एनालाइज करते हैं और पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज करके जब हम रिग्रेशन एनालिसिस रन करते हैं तो वहाँ पर हम कैपिटल वाई आयोटा इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आयोटा प्लस ई आई, जिसको हम एप्सिलॉन भी कहते हैं, एप्सिलॉन
which describes the error term. जब भी हम प्रिडिक्शंस करते हैं, इवन मैथमेटिकल बेस्ड प्रिडिक्शंस भी करते हैं, तो उन प्रिडिक्शंस में डेफिनेटली हमारे पास मार्जिन होता है एरर्स का. हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी डिस्कस किया था कि एक एरर मार्जिन होता है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने उसको टाइप 1 टाइप 2 एरर्स की कैटेगरी में भी प्लेस किया था, लेकिन यहाँ पर हम एरर मार्जिन एक टर्म को रखते हैं जिसमें हम एक नंबर प्लेस करते हैं. वो कहाँ से आएगा, वील डिस्कस व्हेन वील डिस्कसिंग द एग्जांपल. तो यहाँ पर जब हम पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे और पूरी पॉपुलेशन के ऊपर रिग्रेशन एनालिसिस रन करेंगे, तो ये फॉर्मूला हमारे पास अंडर कंसिडरेशन होना चाहिए. और जब हम सैंपल ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन के अंदर से, और जब हम सैंपल को स्टडी करते हैं, तो वाई हेड इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई डिटर्मिन करता है, प्लस ई इज द एरर टर्म. ये डिटर्मिन करता है हमें सैंपल बेस्ड रिग्रेशन लीनियर मॉडल. तो यहाँ पर हमारे पास जो बीटा 1 और b1 है, ये कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन है. ठीक है. यहाँ पर अगर आप इस मॉडल को देखें तो आपको पता लगेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, जिसमें b नॉट जो है वो हमें y इंटरसेप्ट शो कर रहा है, जो कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था. और यहाँ पर जो b1 है वो हमें शो करता है स्लोप विच शोज थ्रू चेंज इन y ओवर चेंज इन x. ये जो डेल्टा का साइन आपको यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है, जिस डेल्टा साइन चेंज इन y over change in x, this delta sign represents the change or represents the increase in values of y on the basis of x. तो जितना भी चेंज y में हुआ है x की बेसिस के ऊपर, वो डिटरमिन करता है हमें स्लोप विच इज नोटेड बाय b1. और y हेड एक्चुअली कैलकुलेट करता है. जो रेड लाइन आपको शो हो रही है, लीनियर लाइन, ये y हेड शो कर रही है, विच इज actually the determination of this regression equation, which is b naught plus b1 xi. The output of regression is a function that predicts the dependent variable based on the values of independent variable. Simple regression fits a straight line to the data. अगर हम simple regression run करते हैं, तो basically simple regression के basis के ऊपर हमारा data एक line के format में fit होता है. जो हमारा data आएगा, हम उसको plot as it is करेंगे, एज इट इज डिस्क्राइब करेंगे हम उसको, जिस तरह से भी हमारे पास रीडिंग्स आ रही हैं. लेकिन जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो बेस्ट सूटेड लाइन होगी जो कि उस डेटा को कनेक्ट करती है. अब यहाँ पर अगर आप डॉटेड फिगर को देखें, तो ये जो डॉट्स हैं ये एक्चुअली ऑब्जर्व वैल्यूज को के प्लॉटिंग को शो कर रहे हैं, कि जो भी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज की या एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन की प्लॉटिंग्स हैं, ये वो डिस्क्राइब हो रही हैं. और ये जो रेड लाइन है, ये हमने खुद से एक लाइन यहाँ पर इरेक्ट की है, जो कि बेस्ट रिलेशनशिप शो कर रही है इन डॉट्स के अंदर. जो मैक्सिमम नंबर है और उसका लाइन के साथ जो डिफरेंस है, वो हमने डिटरमिन किया है एरर टर्म के अंदर. सो जो प्लॉटेड ऑब्जर्वेशन में जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम डेफिनेटली ऑन एन एवरेज लाइन को कंसिडर नहीं कर सकते थे, वहां से हमने लाइन के साथ जो डिफरेंस है, which is denoted by these arrows, वहां से हमने डिटरमिन किया है एरर टर्म. सो एरर टर्म बेसिकली डिस्क्राइब करती है डिफरेंस ऑफ प्लॉटेड लाइन, plotted regression line with the maximum value of observation plotted on the graph paper. So that is something which shows the fit of the data. यहाँ पर से जो डॉटेड लाइन है, दिस इज समथिंग विच वी हैव डिस्कस्ड. यहाँ से जितने भी डॉट्स हैं वो हमने शो किए हैं ऑब्जर्वेशंस वाई की फॉर्म में. जो भी वाई की ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो हमने एग्जैक्टली इसके ऊपर शो की है. वाई एक्सिस के ऊपर, रिमेंबर, ऑन वाई एक्सिस वी विल बी मेजरिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल and on x-axis we will be analyzing the independent one. So what is the change, what change comes when the independent variables increases, when the independent line increases. ये लाइन जैसे जैसे इंक्रीज होती रहेगी, वैसे वैसे y की वैल्यूज के ऊपर क्या चेंज आएगा, ये हमने बेसिकली नोट करना है यहाँ पर. तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हमें शो कर रही है कि हर ऑब्जर्वेशन जो कि हमने प्लॉट की है, उसकी बेसिस के ऊपर जो हमने प्रिडिक्शन की है, वो लाइन रेड लाइन की फॉर्म में हमने शो की है. और ये रेड लाइन हमें आइडेंटिफाई करती है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स.
Now, the observation is determined through the between the red and black dots describes the error margin or the prediction of error term, where prediction of error term is definitely calculated in y head. For each observation, the variation can be described as y is the actual one, y head is the explained one. जब हम y head को mention करते हैं तो yes, this is the explained one because we have calculated it. And E is the error margin because that is something which is a difference which is existing in the plotted area, that the line is not determining, is not exhausting the maximum value of the observed data. So that is why we have not considered it. So if we have not considered it, but it is existing, so that describes the difference between the both the lines describes the error margin. यहाँ से अगर आप देखें तो इन दोनों जो हमारे जो रेड लाइन है वो रिलेशनशिप शो कर रही है हर ब्लैक डॉट के साथ. हर ब्लैक डॉट के अंदर एक बहुत डिजायरेबल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द लाइन एंड द एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन. सो यहाँ पर हमारे पास जो भी डिफरेंस इनका आ रहा है ऑब्जर्व वैल्यूज के अंदर और प्लेसमेंट ऑफ लाइन के अंदर, अगर हम सबके डिफरेंसेस को ऐड कर लेते हैं डेफिनेटली हर पॉइंट के अंदर, हर ऑब्जर्व वैल्यू के अंदर और जो प्लॉटेड लाइन है उसके अंदर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है. वो जो स्पेसिफाइड डिस्टेंस है बेसिकली अगर हम उन सारे डिस्टेंसेस को जो कि एरर्स हैं अगर उन सबको हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर आ जाएगा विच इज़ SSE. तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स जो है वो हमारे पास प्रिडिक्शंस जब हम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक मेजर एरिया होता है जिसको हमने जस्टिफाई करना होता है व्हेन वी आर अंडरटेकिंग अ रिसर्च क्वेश्चन. तो वहाँ पर जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं या जब हम अपने डेटा को जस्टिफाई करते हैं और हर ऑब्जर्व वैल्यू के अंदर और प्लेस्ड रिग्रेशन लाइन के अंदर एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर हमें सम ऑफ स्क्वायर एरर्स लेते हैं ताकि हम अपने डिफरेंस को जस्टिफाई कर सकें कि व्हाई दिस डिफरेंस इज बेसिकली एग्जिस्टिंग एंड व्हाट डज दिस मीन एंड हाउ वी विल बी कवरिंग इट. So that is the sum of squares regression, which is the sum of squared differences between the prediction for each observation and the population mean. तो यहाँ पर हमने जब population को study किया तो ये differences हमारे पास आ रहे थे जो कि एक straight linear line से determine हो रहे हैं, which shows the population mean y bar. Mathematically अगर हम error वाली चीज़ को थोड़ा सा analyze कर लें तो the sum of squares SST is equal to SSR plus SSE. Now SSR is what? SSR is the measure of explained variation. Meaning जब हम mathematically calculate करते हैं summation y minus y head minus y bar को और उसका square लेते हैं तो हमारे पास measures of explained variation आता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास y की मुख्तलिफ वैल्यूज आई हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल y के अंदर हमने कंसिडर किया है 2, 7, 9, 11, 15, 20. यहाँ से डेफिनेटली हमारे पास कोई मीन वैल्यू आएगी. जो भी मीन वैल्यू है वो हम शो करेंगे y बार के केस में. ठीक है, ये जो वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है इसको हम डिविएट करते हैं अगर y की वैल्यूज के साथ, विच इज़ y हेड माइनस y बार. तो यहाँ पर हमारे पास ये जो मीन वैल्यू है -2 का स्क्वायर, मीन वैल्यू -7 का स्क्वायर, मीन वैल्यू -9 का स्क्वायर एंड सो ऑन. इसका जब हम सम करेंगे तो ये हमें शो करेगा SSR. ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी दिस विल शोज SSR which is measure of explained variation. कि जो भी वेरिएशन आ रहा है हमारी ऑब्जर्व वैल्यू के अंदर मीन के साथ पॉपुलेशन में वो बेसिकली SSR है विच इज़ द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन. जब SSE की बात करते हैं तो ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, इसलिए क्योंकि हमने रिग्रेशन लाइन तो प्लॉट कर दी है. अब वो जो रिग्रेशन लाइन हमने प्लॉट की है वो बेस्ट सूटेड लाइन है विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स. Now that particular line is a hypothetical line definitely. Now hypothetical line on an average describes the relationship between the variables. कि ये जो hypothetical line है ये इन दोनों variables x और y के अंदर या independent और dependent variable के अंदर हमें relationship बताती है.
तो इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के अंदर जो ऑब्जर्व वैल्यूज के अंदर जो डिफरेंस है दैट रिमेन्ड unexplained, which is SSE, which is y minus y head. So if we talk about y minus y head, this is SSE, which is measure of unexplained variation. SST जो है ये डिटरमिन करता है हमारे पास measure of total variations in y, कि अगर हमारे पास एक फिगर एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ SSR, which is the explained variation, और एक फिगर एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ unexplained variation, तो उस केस में हमारे पास जो SST है which is the measure of total variation in y, वो डिटरमिन होता है SSR और SSE को ऐड करके, which is summation y minus y bar whole square. y minus y bar का whole square जब हम लेंगे तो हमारे पास SST डिटरमिन होगा, which is the total variation, measure of total variation in y. The proportion of total variation SST that is explained by the regression SSR is known as the coefficient of determination. यहाँ पर हम determine करते हैं regression के model को towards the error analysis, कि इसके अंदर overall error margin कितना होगा, और हम इसको show करते हैं, identify करते हैं with the coefficient of determination, which is represented by capital R square as it is shown in the slide, which is explained through SSR over SST. SSR is the explained variation and SST is the total variation, which is the reciprocal of, or which is the ratio of SSR over SSR plus SSE, as SST is equivalent to SSR plus SST as we have just discussed in the last slide. So जो value है R square की, ये range करती है, या ये जो coefficient of determination है, ये 0 से 1 की range में exist करता है. जितनी ज़्यादा इसकी value हायर होती जाएगी, हायर का मतलब ये है कि 1 के साथ क्लोजर होती जाएगी, तो उतना ज़्यादा एंड द हायर इट्स वैल्यू द मोर एक्यूरेट द रिग्रेशन मॉडल है. जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू क्लोजर टू 1 होगी उतना ज़्यादा एक्यूरेट या उतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती होगी रिग्रेशन मॉडल के अंदर. रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि 0 से 1 के अंदर आर स्क्वायर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, तो जब आर स्क्वायर फॉर एग्जांपल अगर क्लोजर टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेरिएबल्स के अंदर कोई अच्छी खास सी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती. देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज जीरो रिलेशनशिप. और अगर आर स्क्वायर एग्जैक्टली 1 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज एग्जिस्ट 100% एक्यूरेट रिलेशनशिप. सो व्हेनेवर आर स्क्वायर और द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज शोइंग a closer value towards 1, this shows a better relationship or a fine relationship between two variables which are under study. Now here we talk about multiple types of plots. Plots का मतलब है कि अगर हम plot करते हैं independent और dependent variable की readings को graph paper के ऊपर, तो किस किस्म की हमें शक्लें नजर आती हैं, तो इसको हम scatter plots से describe करते हैं. तो regression analysis require interval and ratio level data. अब ये क्या चीज़ें होती हैं? इंटरवल एंड रेशियो लेवल डेटा का मतलब ये है कि एक ऑब्जर्वेशन का दूसरे ऑब्जर्वेशन के साथ जो इंटरवल है, जो डिस्टेंस है, जो वेरिएशन है, उसकी बेसिस के ऊपर हमने रिग्रेशन एनालिसिस रन करना है. टू सी इफ योर डेटा फिट्स द मॉडल ऑफ रिग्रेशन, इट इज़ वाइज टू कंडक्ट अ स्कैटर प्लॉट एनालिसिस. तो अगर आपने इसकी प्लॉटिंग करनी है मैनुअली, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि स्कैटर प्लॉट एनालिसिस क्या होता है और स्कैटर प्लॉटिंग क्या होती है. इसकी रीज़न ये है कि the regression analysis assumes a linear relationship. If you have a curvy relationship or no relationship, regression analysis is of little use. अब अभी हम फ्यूचर में अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि किस किस्म के प्लॉट्स हो सकते हैं स्कैटर एनालिसिस के अंदर. स्कैटर प्लॉट एनालिसिस बेसिकली ये डिटरमिन करता है कि जो हमारे पास मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं या जो मल्टीपल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको हमने एज इट इज प्लॉट किया है अपने ग्राफ शीट के ऊपर, उनके दरमियान में वेरिएशन कितना है. क्योंकि उनका जो वेरिएशन है हर प्लॉट का, हर वैल्यू का, हर ऑब्जर्वेशन का, उसी की बेसिस के ऊपर, उसी की ऑन एन एवरेज बेसिस के ऊपर हमने इरेक्ट करनी है रिग्रेशन लाइन. और अगर उन वैल्यूज के अंदर जो रिलेशनशिप है वो कर्वी आ जाता है, वो कर्व बन जाता है या वो पैराबोला बन जाता है, तो उस केस में जो रिग्रेशन एनालिसिस है उसका तो फायदा नहीं है.
तो हम तो लीनियर रिग्रेशन रन ही नहीं कर सकते अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कर्व नहीं आया, हमारे पास स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट नहीं करी, तो उस केस में तो हमारे पास रिलेशनशिप है वो तो कर्वी रिलेशनशिप आ गया, विच इज़ नॉट एक्चुअली द डोमेन ऑफ एनालाइजिंग द रिग्रेशन एनालिसिस। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ग्राफ को देखें तो इसके अंदर जो वैल्यूज प्लॉट हुई हुई है वो बिल्कुल स्टार्स की तरह से प्लॉट हुई हुई है। अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप है एक ऑब्जर्वेशन का दूसरी ऑब्जर्वेशन के साथ और तीसरी ऑब्जर्वेशन के साथ और चौथी और पांचवी, ये तो बहुत ही कोई अजीबोगरीब किस्म का रिलेशनशिप है, विच कैन नॉट बी ड्रॉन, विच कैन नॉट बी टेकन ऑन एन एवरेज। इसको तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो स्कैटर सा रिलेशनशिप है इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किस किस्म का रिलेशनशिप है, which shows no relationship between two variables, meaning that variable y and variable x are not related, or the dependent variable is simply nothing, has simply nothing to do with the y variable or the dependent one. So both the values are determined on their own basis. So we cannot anticipate, we cannot predict a relationship, or we can just say that there exists no relationship if the plot is scattered, if the relationship is scattered. If you see the second equation, second plotting, इस केस में हमारे पास जो observations आ रही हैं उनकी on an average अगर हम देखें तो हमारे पास एक negative linear line बनती है। ठीक है, negative का मतलब ये है कि it is downward sloping. When the values of x are increasing, the values of y are decreasing, just like the in the case of law of demand, कि जब भी हमारे पास prices of products increase होते हैं तो हमारे पास डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स रिड्यूस हो जाती है। सो देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वन के व्हेनेवर द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्रीजेस द वैल्यूज डिटरमिन्ड ऑन y वेरिएबल द डिपेंडेंट वन विल टेंड्स टू फॉल। तो इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है उसकी वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, 1 2 3 4 इंक्रीज होती हैं, तो दूसरी वैल्यूज 5 4 3 2 1 रिड्यूस होंगी। So which shows definitely a linear regression or a linear trend, but a negative one. यहाँ पर अगर हम देखें थर्ड प्लॉटिंग में तो हमें पता लग रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन है उनकी उनकी जो रिलेशनशिप है वो इनिशियली इंक्रीज हुई है, उसके बाद कांस्टेंट हुई है और उसके बाद इट टेंड्स टू फॉल। इसका मतलब ये है कि एक कर्व की फॉर्म में हमारे पास रिलेशनशिप आ रही है जिसे हम कर्वी लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। और कर्वी लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पर ये लीनियर थी विच इज़ इंक्रीजिंग, दूसरे टाइम पर ये लीनियर थी विच इज़ कांस्टेंट, और तीसरे टाइम पर ये लीनियर थी विच इज़ नेगेटिव। तो इसको भी हम रीड आउट कर सकते हैं और इससे हम एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वन वेरिएबल, जिस तरह से हम मार्जिनल कॉस्ट को डिस्कस करते हैं या कॉस्ट कर्व को डिस्कस करते हैं कि एट वन पॉइंट इट टेंड्स टू इंक्रीज, देन इट रिमेन्स कांस्टेंट एंड देन टेंड्स टू फॉल। तो उस केस में हमारे पास जो रिलेशनशिप आती है दो वेरिएबल्स की वो कर्वी लीनियर है जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली जो लास्ट ग्राफ है आपको अगर उसमें हम रिग्रेशन एनालिसिस रन करें तो हमारे पास एक पॉजिटिव लीनियर कर्व बनता है, एक पॉजिटिव लीनियर लाइन बनती है जो शो करती है कि दोनों वेरिएबल्स के अंदर positive relationship है। whenever the values of y increases, x increases, it will definitely increase the values of y. So that is a type of scatter plots जिनकी interpretation आपको पता होनी चाहिए कि जब भी इस किस्म की आपको plotting नज़र आ रही है तो उसके अंदर आप on an average determine कर सकते हैं, erect कर सकते हैं linear model को। Now this is a linear relationship which is a positive relationship as population with BAs are increasing. BAs का मतलब ये है कि percent of population 25 years and over with bachelor's degree or more, that is anticipated in March 2000 estimates. और उस estimates में bachelor's की population हमने determine की है कि जो BAs जितने भी graduate individuals हैं, personnel है, उनका per capita income के ऊपर क्या role है। तो यहाँ से अगर हम इस रिलेशनशिप को डिटरमिन करें तो डेफिनेटली ऑन एन एवरेज वी कैन कंसिडर कि ये एक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है और हम यहाँ पर इस किस्म की एक लाइन को प्लॉट कर सकते हैं, which is again an example of interpretation of a scatter plot. Okay, now a regression line is a best straight line description of the plotted points and can use it to describe the association between the variables. That is something which we have already discussed in detail, I think, कि जो regression line है वो दोनों variables के अंदर association को describe करती है,
दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है उसको डिटरमिन करती है और उसको डिस्क्राइब करती है. If all the lines fall exactly on the line, then the line is 0 and you have a perfect relationship. तो अगर सारी की सारी लाइंस जो है अगर सारी की सारी वैल्यूज लाइन के ऊपर प्लॉट हो जाती हैं तो हमारे पास परफेक्ट या जीरो रिलेशनशिप आती है. लाइन के ऊपर प्लॉट होने का मतलब ये है कि वो या तो y को टच करती हैं या वो x को टच करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जीरो रिलेशनशिप है. मीनिंग अगर उसकी शक्ल जो हमारी रिग्रेशन है उसकी शक्ल इस तरह से होती है कि आइदर इट इज़ इंक्लाइन टुवर्ड्स x और इट इज़ इंक्लाइन टुवर्ड्स y, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के अंदर वो बहुत वीक है और जीरो रिलेशनशिप है. यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमें नोट डाउन करनी चाहिए विच वी नीड टू रिमेंबर इज कि रिग्रेशंस आर स्टिल फोकसेस ऑन एसोसिएशन नॉट कॉजेशन. एसोसिएशन की बात कर रहे हैं हम. वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉजल एनालिसिस कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कॉज कर रहा है या नहीं कर रहा है या कब कॉज कर सकता है. तो हम कॉजेशन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. हम ये नहीं कह रहे कि एक्स वेरिएबल के अंदर चेंजेस की बेसिस के ऊपर वी आर कॉजिंग चेंजेस इन वाई, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉजेशन. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज गिवन टू अस, उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज बीन प्रोवाइडेड टू अस. कि अगर एक्स की ये वैल्यूज हैं, ये एक डिस्क्रिप्शन है इक्वेशन की, और इस इक्वेशन के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को प्लॉट कर सकते हैं. तो इस मल्टीपल प्लॉट के अंदर या इस मल्टीपल वैल्यूज की कंसिडरेशन के अंदर जो रिलेशनशिप है हमने सिर्फ उसे स्टडी करना है. हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि x ने y को कॉज किया है या नहीं किया है, या उनकी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है या नहीं है. सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप विच इज आइदर लीनियर, पॉजिटिव, नेगेटिव और कर्वी. Secondly, association is a necessary prerequisite for inferring causation, but also the independent variable must precede the dependent variable in time. Yes, when we talk about relationship discussion, this relationship discussion or this association is a prerequisite when you are talking about causation. जब भी आप causation को discuss करते हैं, cause and effect relationship की बात करते हैं, तो definitely हमारे पास information होनी चाहिए about association and रिलेशनशिप. लेकिन इसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दिस हैज टू बी प्रीसीडेड इन टाइम थ्रू डिपेंडेंट वेरिएबल. इट हैज टू कम बिफोर द डिपेंडेंट वेरिएबल. वो प्रीसीड होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल से इन टाइम, यानी कि पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होगा तो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होगा. तो इसका मतलब यह है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पहले नहीं आ सकता. जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंजेस आएंगे तो ही डिपेंडेंट के अंदर चेंजेस रिकॉर्ड हो सकेंगे. इसका मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी प्रीसीडेड टू द डिपेंडेंट वन. सेकेंडली, द टू वेरिएबल्स मस्ट बी प्लॉसिबली लाइंड बाय अ थ्योरी. इसका मतलब यह है कि उन दोनों वेरिएबल्स के अंदर थ्रू थ्योरेटिकल रिलेशनशिप होना चाहिए. मीनिंग थ्योरेटिकली इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एसोसिएशन होनी चाहिए, और उस एसोसिएशन की बेसिस के ऊपर हम फर्दर उनके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं. कंपीटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मस्ट बी एलिमिनेटेड. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ जो भी वेरिएबल्स कंपीट करते हैं, यानी कि जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट होता है, उनका जो भी कंपटीशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर आपस में, उनको हमें निगलेक्ट करना पड़ता है in order to know the causation effect. Then comes the regression table. अब regression के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली है. Now we are in a position to identify the coefficient of regression. और regression के ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में अब डिस्कशन कर सकते हैं कि coefficient of regression क्या है और हम regression को किस तरह से डिटरमिन करते हैं. So therefore the regression coefficient is not a good indicator for the strength of relationship. Two scatter plots with very different dispersion could produce the same regression line. अब अगर हम regression line की बात करें तो उसके अंदर एक ड्रॉबैक है. ड्रॉबैक ये है कि अगर हमारे पास आपको जो दो प्लॉट्स नजर आ रहे हैं ग्राफ के ऊपर हुए हुए, उन दोनों के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप है. और क्योंकि हम बात करते हैं कि जो रिग्रेशन है उसकी जो लाइन है या उसकी जो प्लॉटिंग है वो एक ऑन एन एवरेज इरेक्टेड लाइन है जो कि हमने हाइपोथेसाइज की है, हाइपोथेटिकल लाइन है जो कि इन दोनों वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को शो करती है.
लेकिन इस केस में ये जो आपको एग्जांपल्स शो हुई हुई है, इन दोनों एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो ऑब्जर्व वैल्यूज की प्लॉटिंग है उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इस फ़र्क की भी इस फ़र्क का जो 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 वर्थ है इट रिमेन्स देयर, लेकिन उसकी बेसिस के ऊपर जो हमने प्लॉट किया, जो हमने लाइन इरेक्ट की है, वो पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप ही शो कर रही है। लेकिन इन दोनों की जस्टिफिकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है टू डिटरमिन द रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। तो फिर हम रिग्रेशन कोफिशिएंट को डिस्क्राइब करते हैं टुवर्ड्स इट्स स्लोप। और स्लोप क्या होती है? जो आपको बताती है दोनों वेरिएबल्स का हर ऑब्जर्वेशन के साथ डिफरेंस। एवरी ऑब्जर्वेशन इज डिस्क्राइबिंग व्हाट डिफरेंस बिटवीन इट। तो अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को थोड़ा सा रेफर करें तो यहाँ पर एवरी सिंगल ऑब्जर्वेशन इज शोइंग डिफरेंस इन स्लोप, मीनिंग द डिस्टेंस बिटवीन ईच observed value is actually a difference between the two variables, or the relationship difference, which is very much evident from the two graph plots. So therefore, when we predict a coefficient of regression, we talk about a slope of regression line and tells that what is the nature of relationship between the variables. If it is positive, okay, fine, it is positive. But this positive relationship is having which slope, or it is determined through which intercept. So that is something which changes the entire scenario of interpretation and entire scenario when we are predicting a situation. So how much change in the independent variable is associated with how much change in the dependent variable is basically taken in study. The larger the regression coefficient, the more is the change. The larger coefficient of regression is discussed, meaning there is more variability, or there is more slope which is existing, there is more difference which is existing, which is calculated from the variation in independent variable towards the variation on the dependent one. So therefore, whenever the regression coefficient increases, it shows the more or the larger change in the between the variables. Here we are talking about the Pearson's regression analysis, which is determined through small r. Pearson was a statistician who has developed this model. To determine the strength, you look at how closely the dots are clustered around the line. So if we are talking about the scatter plot and we are anticipating a kind of relationship between two variables, we are more interested in noting that what is the connection between the two dots. So if their plotting is closely connected, if the relationship is closely tied, then there is a tight relationship, or a cluster is formed which shows very strong connection between the values. So we can say that there exists a strong relationship between two variables, while on the other side it might be distant, or it might be located on distant locations in the plot paper. So therefore we can say that there exists a weak relationship between the two variables. Pearson is, or r, small r is given in a range of -1 to +1. Remember, when we talk about the coefficient of determination, we talk about positive area, that is 0 to 1. We just analyze a relationship. But when we talk about Pearson, this also states a negative relationship as well. When we talk about Pearson, this describes that the range of the data might exist between -1 to +1, with 0 being no linear relationship at all. So therefore we talk about negative relationship. There might come results in Pearson regression analysis which shows a negative interpretation, a negative line, but definitely they will be in range from -1 to 0, -1 to +1. So that will be, if it is -1 to 0, this shows a negative relationship in a linear model, but if it exactly becomes 0, this shows simply no relationship between the variables. So when you are taking the table from SPSS, और अगर आप कोई भी डेटा को प्लॉट करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को जनरेट करते हैं, प्लॉट करते हैं SPSS में, रिजल्ट्स जनरेट करते हैं, तो आपके पास इस किस्म का एक टेबल डिस्क्राइब होगा जिसके अंदर बहुत सारी डिस्कशंस, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस मेंशन होंगी। इसके अंदर आपको कैपिटल R की वैल्यू भी नज़र आ रही है, विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसके अंदर आपको कैपिटल R स्क्वायर की भी वैल्यू नज़र आ रही है। we have the value of adjusted R square. Now what is adjusted R square?
there are few values whose distance can be measured and can be adjusted with the line erection. अगर हम इस line को थोड़ा सा steep और थोड़ा सा decline करते हैं तो we can easily manage a relationship which is known as the adjusted R square and then the standard error of estimate which is SEE, जिसको अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि standard error of estimate जो है वो determine होता है on the basis of difference between the maximum value and the erected line. So this model summary is basically describes the multiple areas when you plot the data on SPSS. So when you run regression analysis on SPSS, you get 3 tables, each tells you something about the relationship. The first model summary है आपके पास, इसके अंदर आपको R Pearson model प्रोडक्ट मोमेंट को कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता लग रहा है. इसके अंदर आपको 2 वेरिएबल्स के अंदर इस किस्म की रिलेशनशिप पता लग रही है. एंड रिमेंबर इट ऑल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट R other than error portion, whenever we are talking about R, that will be less than 1, because if it is equivalent to 1, this will shows an exact relationship or an accurate relationship between the two, meaning Y is equivalent to X. That is something. In case R is equals to 0.36, इस केस में इस मॉडल के अंदर जो हमने इससे पहले एग्जांपल डिस्कस की थी उसके अंदर जो R है वो शो हो रहा है 0.36. इसका मतलब है कि 73% रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है रिग्रेशन में. वेरिएबल y x is regressing 73% towards variable y. R is the square root of R square. R is the square root of R squared and is the correlation between the observed and predicted values of dependent variable. Now R squared, ये एक second table है जो आपको R square की value बता रहा है. इसके अंदर is the proportion of R square is the proportion of variance in the dependent variable, that is income per capita, which can be predicted from the independent variable, that is the level of education. तो R स्क्वायर के ऊपर जब हमने बात की तो R स्क्वायर बेसिकली ये 0.542 वैल्यू शो कर रहा है. इसका मतलब ये है कि 54.2% वेरिएशन है इनकम के अंदर which is predicted from the variable education. So here we need to note that this is an overall measure of the strength of association and does not reflect the extent to which any particular independent variable is associated with the dependent variable. Overall जो relationship हमने exist कराया है या overall जो relationship exist करता है दो variables के दरमियान में वो 54.2% है, which actually shows the variation in income which is predicted from the variable education. तो education और income का जो कंबाइंड रूल है वो हमें यहाँ से पता लग रहा है. हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का y के साथ क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है, दैट इज नॉट बीन डिस्क्राइब्ड हियर. R square is also called the coefficient of determination. Now we need to talk about something which is adjusted R square. The third column in the table is the adjusted R square, which is as the predictors are added to the model, each predictor will explain some of the variance in the dependent variable simply due to chance. Sometimes there is a chance of changing your prediction. So whenever you are changing your prediction and whenever you are changing the slightly the line position, we are actually talking about the adjusted R square. One could continue to add predictors to the model which would continue to improve the ability of the predictors to explain the dependent variable. Whenever we are identifying the dependent variable, that is something which can be studied, which can be somehow managed towards making changes towards the R square. Whenever we are increasing multiple more values in the dependent variables, definitely the variable y will be affected. So but that is simply due to the chance of variation in a particular sample. कि अगर हमने sample का size increase कर दिया, उसमें कुछ और values हमने add कर दिए तो इसलिए y के ऊपर definitely फर्क तो पड़ेगा, लेकिन that is determined through chance. So adjusted R square attempts to yield a more honest value to estimate the R squared for the population. The value of R square was 0.542, which is 54.2, and here adjusted R square is 53.2, which is round about equivalent to the previous one. So there isn't much difference because we are dealing with one variable. हाँ, अगर हमारे पास multiple linear regression होता है तो हमारे पास बहुत सारे variables होते हैं जिनका effect कुछ भी हो सकता है. कुछ का पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है, कुछ का नेगेटिव ट्रेंड आ सकता है, लेकिन उस केसेस में एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी सी फर्क होगी.
when the number of observation is small and the number of predictors is large, अगर हमारे पास observations जो है वो कम है और number of predictors large है, तो there will be much greater difference between R square and adjusted R square. By contrast, when the numbers of observation is very large compared to the number of predictors, the value of R square and adjusted R square will be much closer. तो इस केस में जब हमारे पास R square जो है वो adjusted नहीं है और जब हमारे पास बहुत ज़्यादा observations हैं और बहुत ज़्यादा हम comparisons कर रहे हैं predictors का, तो वहाँ पर R square और adjusted R square में काफ़ी ज़्यादा relationship या closeness होगी. So when you are determining the regression line model, we can use the Excel sheets as well. So here we are using the Excel sheet, जहाँ से आपको थोड़ा सा और idea हो जाए कि हम regression model को through Excel किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. इससे पहले जो आपने मॉडल देखा है वो SPSS से जनरेटेड है. तो SPSS पे अगर आप सिर्फ प्लॉट कर दें वैल्यूज़, तो वो आपको ऑटोमेटिकली मॉडल बता देगा, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स दे देगा. हाँ, उनकी इंटरप्रिटेशन और उनकी प्रेडिक्शन आपने खुद करनी है, लेकिन वैसे से रिजल्ट्स आपको एक्सेल के ऊपर भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा आपको ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है और उसके रिजल्ट्स के अंदर इतनी एक्यूरेसी टेबुलेटेड फॉर्म में हमारे पास आते भी नहीं है. So therefore we use Excel or any other popular statistical software to select tools, data analysis और regression analysis कर ले. जहाँ पर आप Excel के अंदर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आप tools में जाएं, उसके अंदर data analysis के अंदर जाएं और regression के ऊपर चले जाएं. डेटा को सेलेक्ट कर लें तो आपके पास उन दोनों वैल्यूज़ के अंदर जो भी रिलेशनशिप है वो रिग्रेशन की फॉर्म में शो हो जाएगा. आपने प्रोवाइड करना होगा दो किस्म का डेटा, एक एक्स फॉर्म में और एक वाई फॉर्म में, और आउटपुट आपको एक नई शीट के ऊपर मिलेगा. जो आपने एक्सेल की विंडो खोली हुई है, एक और विंडो ओपन होगी और उसके अंदर आपको रिग्रेशन का रिजल्ट नज़र आएगा. इसके अलावा एक तीसरा तरीका है मैनुअल कैलकुलेशन का. मैनुअल कैलकुलेशन का तरीका फार्मूला के थ्रू है, जो हमने इससे पहले अभी आपको मैंने डिस्कस करके बताया है कि इफ़ वी नीड टू नो द रिग्रेशन और हमें इसमें प्लॉट करनी है वैल्यूज़, तो हम उसको समेशन वाई माइनस वाई हेड की फॉर्म में, वाई माइनस वाई बार की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में डिस्कस करेंगे और उसके अंदर वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ डालेंगे, ए की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, बीटा की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से हम उनको प्लॉट करके रन कर लेंगे. सो दैट इज़ जब भी हमने ये वाला जो डेटा अगर हम प्लॉट करें एक्सेल शीट के ऊपर, तो उसका रिजल्ट इस किस्म का आएगा रिग्रेशन मॉडल के ऊपर, जिसमें आपको मल्टीपल रिग्रेशन भी नज़र आ रहा है, आर स्क्वायर भी नज़र आ रहा है, एडजस्टेड आर स्क्वायर भी नज़र आ रहा है, स्टैंडर्ड एरर मार्जिन भी नज़र आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें 21 है वो भी आपको शो हो रही हैं. एनोवा के अंदर आपको रेजिडुअल और रिग्रेशन भी नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम. एनोवा इज़ बेसिकली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसके ऊपर हम थोड़ी सी और डिटेल डिस्कशन करेंगे इन फ्यूचर लेक्चर्स, लेकिन सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर लेते हैं कि जब भी आप रिग्रेशन का टेबल रन करते हैं तो आपको वेरिएंस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलती है, विच इज़ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और उसके अंदर भी एक रिग्रेशन का मार्जिन होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर आपका क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू भी यहाँ पर मेंशन है और वेरिएबल फैक्टर्स की वैल्यू भी मेंशन है. टी स्टैटिस्टिक और पी वैल्यू भी इसने शो की है, जिससे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व में वेयर इट इज़ एग्जिस्टिंग. जब हम पी वैल्यू को बात करते हैं तो अगर वो गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर लाई करता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं अपने हाइपोथेसिस को, और अगर वो शेडेड एरिया के अंदर या आउट ऑफ द रेंज, आउट ऑफ द हाइपोथेसिस रेंज लाई करता है तो फिर हम रिजेक्ट कर देते हैं अपने हाइपोथेसिस को. यहाँ से हम थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं टुवर्ड्स एरर मार्जिन, विच इज़ द मैनुअल कैलकुलेशन, एरर मार्जिन टुवर्ड्स द मैनुअल कैलकुलेशन, जिसमें SSE हम कैलकुलेट करते हैं y माइनस वाई हेड स्क्वायर से, SSR कैलकुलेट करते हैं y माइनस वाई हेड होल स्क्वायर से, और SST हम कैलकुलेट करते हैं इन दोनों के डेविएशन से, दैट इज़ y माइनस वाई होल स्क्वायर. ये कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं जहाँ पर आपके पास मीन स्क्वायर एरर मेंशन है और मीन स्क्वायर रिग्रेशन मेंशन है, which is SSE over degree of freedom and SSR over degree of freedom, where R square or the coefficient of regression is equals to SSR over SST, or S of yx, that is the standard deviation of y upon x, is SSE over n minus 2, where n is the number of observations.
यहाँ से हमने जो बीटा 1 कैलकुलेट किया है दैट इज s ऑफ s अपॉन x ऑफ x ऑन y डिवाइडेड बाय s ऑफ sx, दैट इज द y इंटरसेप्ट और दैट इज द स्लोप, और जो हमारे पास b नॉट है, जो y इंटरसेप्ट है दैट इज y बार माइनस b1 इंटू x बार. हाउ टू मेजर द मॉडल ऑफ गुडनेस. जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हमें गुडनेस ऑफ फिट के ऊपर भी बात करनी चाहिए. लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में गुडनेस ऑफ फिट को डिस्कस किया था. थोड़ा सा रेफरेंस अगर आपके माइंड में हो तो सिमिलर एरिया इज डिटरमिन्ड थ्रू द गुडनेस which identify that whether this erected line fits that data maximally or not. So R square is the coefficient of determination. F test एक टेस्ट होता है जो कि जिसको हम एफ स्रिट और पी वैल्यू लेस देन अल्फा के ऊपर डिस्कशन करते हैं. एफ टेस्ट की बेसिस के ऊपर और काय स्क्वायर की बेसिस के ऊपर हम डिटरमिन करते हैं गुडनेस ऑफ फिट. स्टैंडर्ड एरर के ऊपर हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बात कर ली, और टी स्टैटिस्टिक जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है, वहाँ से हम जब हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं तो हम डिटरमिन करते हैं कि वेदर वी आर एबल टू एक्सेप्ट इट और नॉट. बीटा 1 के लिए जब हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो remember whenever we are making a prediction, so definitely we are taking a decision for future. So that decision might involve multiple alternatives to be selected, and these multiple alternatives which require to be selected has to undergo the hypothetical statements procedure or the hypothesis testing. So if it is the statistical hypothesis testing, then we have to undergo regression analysis towards the hypothesis testing as well. Testing to see the linear relationship between x and y is significant at a specific population level or not. We need to know the t statistic, and we have to follow the 5-step process. That is the similar hypothesis testing 5 steps process, in which at first point you need to know the null and alternative hypothesis. Secondly, you know the level of significance. Thirdly, you have to know the critical region. Then you will be talking about the calculations on the critical region, and finally you will be drawing the calculations. तो ये 5 स्टेप का जो मॉडल है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, इसको आपने इस केस में भी रन करना होता है. that how to follow the 5 the whether the model is significant, holding significant linear relationship or not. So here we need to know the H naught and HA, which is the alternative and null hypothesis. T strit or T strit is basically the t test, which in which we need to know the alpha value or alpha by 2 somehow, or n by 2 with n by n minus 2 degree of freedom, and there we need to apply it. Standard error in terms of linear regression is determined again through standard error of estimation, which is SE. A measure of variation around the regression line. If SE is small, the standard deviation of errors. SE basically हमें determine हो रही है standard error of estimate. जब हम standard error की बात करते हैं तो हम standard deviation की बात करते हैं. Remember हमने जब t statistic को डिस्कस किया था उसमें भी हमने SE को standard error के फॉर्म में डिस्कस किया था कि ओवरऑल एरर कितना एग्जिस्ट करता है टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड डेविएशन, कि अगर डेविएशन के ऊपर इतनी वैल्यूज डेविएट हो रही हैं तो मैक्सिमली एरर मार्जिन शो करता है कि मैक्सिमम और इरेक्टेड लाइन के अंदर जो डिफरेंस है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है. एस ऑफ B1 शोज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B1. एस ऑफ B1 जो है वो स्टैंडर्ड एरर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का शो करता है B1 का, which shows multiple slopes. आपको जो B1 की formation of lines नज़र आ रही है, इनमें मुख्तलिफ किस्म की slopes हैं और उन सब की standard deviation different होगी. So a measure of variation of slopes from different samples shows the SB1, which is the slope of standard deviations. If SB1 is small, our B1 estimate is probably very accurate estimates of. Now the standard error of regression is a measure of its variability. It can be used in a similar manner as standard deviation, allowing for the prediction intervals. Y plus minus 2 is a standard error that provide approximately 95% accuracy, and 3 standard errors will provide you around 99% confidence intervals. Standard error is calculated by taking the square root of the average prediction error. That is through SSE over n minus k, where
n is the total number of observations and k is the total number of variables in the model. n हमारे पास total number of observations है एक मॉडल के अंदर, और k वो सारे वेरिएबल्स हैं जो कि हमने शो किए हैं अपने मॉडल के अंदर, और उनका जो डिफरेंस है वो हमने सोर्स को डेविएट किया है. स्टैंडर्ड एरर बेसिकली हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ही बता रहा है यहाँ पर, और स्टैंडर्ड एरर इज डिटरमिन्ड थ्रू SSE ओवर n-k. उसका अंडर रूट अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास y+-2 की केस में we'll be talking about 95% accuracy, और अगर हम y+-3 का केस लेते हैं, 3 वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं, तो हमें 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर रिजल्ट्स मिल जाते हैं. The output of simple regression is the coefficient beta and the constant a, and the equation then becomes a plus beta x plus e, which we have already discussed in detail, where e is the residual error, beta is the per unit change in the dependent variable for each unit change in the independent variable, which mathematically speaks as change in y over change in x, which we have already discussed in detail. This can happen in multiple variables as well. अगर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को अंडर स्टडी लेते हैं तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज होते जाएंगे, और डेफिनेटली उनके साथ उनकी स्लोप भी चेंज होती जाएगी, लेकिन वाई इंटरसेप्ट चेंज नहीं होगा. और यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं वो रिमेंबर करनी ज़रूरी है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल वेरिएबल्स एडेड इन द रिग्रेशन लाइन और इन द रिग्रेशन एनालिसिस, वाई इंटरसेप्ट रिमेन्स द सेम, or the point from which we have started initiating the measurement will remains the same. जिस तरह कि हमने इस एग्जाम्पल में अभी डिस्कस किया है कि यहाँ पर हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो सिमिलर है, लेकिन हमारे पास मल्टीपल स्लोप्स एग्जिस्ट कर रही हैं. If there are multiple slopes which are showing different types of lines, in that case we are talking about multiple set of variables here, which are determined through beta 1 analysis. beta 1 की slope से determine हो रहे हैं. तो यहाँ पर y intercept जो show कर रहा है, this is a, और beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta k xk plus error term, ये describe कर रहा है integration of multiple variables, or you can say involvement of multiple variables in determining the regression line. When you are talking about k, you are talking about multiple variables. So here k involves multiple set of variables and e is the epsilon, which is the error term. जितने ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास एरर का मार्जिन जो है वो इट माइट इंक्रीज. जब भी हम मल्टीपल पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं या जब भी हम मल्टीपल एरियाज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और उनकी रिलेशनशिप डिटरमिन करना चाहते हैं एक रिग्रेशन एनालिसिस से, तो एक रिग्रेशन मॉडल से, तो उस केस में हमारे पास हर पैरामीटर से रिलेटेड मल्टीपल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ये इन्फॉर्मेशन हमें उनकी स्लोप्स को डिटरमिन करने में यूज़फुल होती है, और वहाँ से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारी y की एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ रही है. ये एक एग्जांपल है पेट फूड की, which estimates sales based on shelf space. 2 sets of samples are given in which 12 observations of each are mentioned. Perform a regression analysis on both sets of data. यहाँ पर हमारे पास दो शीट्स मेंशन है और उसके अंदर हमें सेल्स गिवन है पेट फूड की, जिसके अंदर 2 सेट्स ऑफ सैंपल हमने उठाए हैं और 12 ऑब्जर्वेशंस उन दोनों के अंदर मौजूद हैं. तो यहाँ पर सैंपल 1 हमें स्पेस के फॉर्म में शेल्फ स्पेस शो कर रहा है कि 5 की शेल्फ स्पेस के ऊपर 1.6 सेल्स है, अगेन 5 की शेल्फ स्पेस पे 2.2 सेल्स है, और इट इज इंक्रीजिंग अप टू शेल्फ स्पेस 20, एंड सिमिलरली 5 to 20 shelf space is mentioned and multiple sales figures are mentioned in sample 2 as well. यहाँ पर अगर हम इसी फिगर को इस टेबल को उठाकर अगर हम SPSS के अंदर डाल दें और रिजल्ट्स को एंटिसिपेट करें तो हमारे पास कुछ इस किस्म तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो शो करेंगे कि इन दोनों के अंदर कितना रिलेशनशिप है और कितना रिलेशनशिप नहीं है. You might do it once you run the SPSS, और इसको अगर आप सिर्फ एक्सेल शीट के अंदर भी डालें इन दोनों शीट्स को तो आपके पास रिग्रेशन के रिजल्ट्स शो हो जाएंगे.
Let us slightly discuss about ANOVA and p-value with reference to f, that what it states when you take some data from the SPSS. So here the p-value associated with this f value is very small, that is 0.00. यहाँ पर हमारे पास जो p-value आ रही है 0.00 है, वो जो कि बहुत small है और which we cannot undertake. These values are used to answer the question that do the independent variables reliably predict the dependent variable or not. यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं ये डिटरमिन करती हैं कि क्या हमारे पास इतना डेटा मौजूद है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सके. P value is compared to the alpha value, typically that is 95% confidence interval, or alpha is equals to 0.05. And if smaller, you can conclude that yes, the independent variable reliably predict the dependent variable. If p value were greater than 0.05, you would say that the group of independent variables does not show statistical significant relationship, and there you will be rejecting H0 and accepting H1. These are the coefficients which are coefficient of regression, which are B, which are shown through unstandardized and standardized coefficients of beta with reference to their standard error and t-statistics with specific level of significance. This is again an SPSS generated table which shows the coefficients of regression. These are called the beta. Beta is the value of regression equation for predicting the dependent variable from the independent variable, and these are called the unstandardized coefficients because they are measured in their natural units. As the coefficients cannot be compared with one another, so therefore we need to determine which one is influenced in the model because they can be measured on different scales. These coefficients are, through this chart we can look at two variables which shows that how different bases the beta value are changing. That is why you need to look at the standardized beta to see the differences. Beta are the standardized coefficients. These are the coefficients that you would obtain if you standardize all the variables in the regression, including the dependent and all the independent variables, and ran the regression analysis. By standardizing the variables before running the regression, you have put all of the variables on the same scale, and you can compare the magnitude of the coefficient to see which one has more of an effect. And lastly, you will also notice that the larger betas are associated with the larger t values. Now, how to translate a typical table? यहाँ पर independent variables में अगर हमारे पास पर कैपिटा इनकम जो है वो इनकम पर कैपिटा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हम बीटा बी और बीटा को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बैचलर्स जो है वो 688.939 है और उनका बीटा 0.73 है, whereas the R square shows 0.54 and number of cases are 49 which are considered. The 0.54 is basically the regression line. B represents the slope of the line, which is calculated by dividing the change in dependent variable through the independent one. That is something which we have already discussed in detail. When we are comparing two variables, the regression analysis is useful for comparing two variables to see whether controlling for other independent variable affect our model or not. For the first independent variable, education, the argument is more educated populace will have higher paying jobs, producing a higher level of per capita income in the state. And the second independent variable is included because we expect to find better paying jobs and therefore more opportunity for state residents to obtain from them in urban rather than rural areas. यहाँ पर हम एक स्लाइड सा लुक मल्टीपल और रिग्रेशन एनालिसिस को दे देते हैं ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाए कि इनकी प्रेजेंटेशन में कहाँ पर फ़र्क आ सकता है. जब हम सिंगल रिग्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर लीनियर की बात करते हैं और हमारे पास सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व है. जब हम मल्टीपल रिग्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल प्रेडिक्टर्स शामिल होते हैं उसमें, जिसमें हम माइट बी पॉपुलेशन को या माइट बी कुछ और वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड करके उनकी बेसिस के ऊपर रिग्रेशन एनालिसिस रन कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर जो प्रेडिक्टर्स जो है हमारे पास कांस्टेंट ही होंगे जो कि हमारे पास स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ से हमारे पास ये टेबल्स इन समरी अपीयर होते हैं व्हेन यू आर रनिंग डेटा ऑन SPSS, और इन सब की प्रेडिक्शंस हमने डिटेल में प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर डिस्कस कर लिए.
ओके, इन सिंगल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन ये दो किस्म के एनालिसिस हमें नज़र आए हैं. वन इज़ शोन इन मल्टीपल रिग्रेशन केस, जो हमारे पास पर कैपिटा इनकम है वो डिटरमिन हुआ है बी से, और जिसमें उसकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विद बैचलर्स डिग्री इज डिटरमिन थ्रू 517.62, जो कि लास्टली हमारे पास 688.93 थी. और इसके अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू भी स्लाइटली चेंज है, विच इज़ 0.45 एंड हेयर इट इज़ 0.72. इसमें एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज है, विच इज़ 0.70, एंड द नंबर ऑफ केसेस आर बोथ इन सिमिलर, that is 49 we have considered. So in this lecture we have discussed in detail about regression analysis. We have taken into consideration that what is actually a regression analysis, what is a linear regression analysis, what is meant by the slope of the line, how we plot the how we read the scatter plots, and how we determine the multiple values of regression and coefficient of determination. We have also analyzed that slightly, that what is the ANOVA and F or T distribution contribution in terms of hypothesis testing towards the regression analysis. तो आज के लेक्चर से हम होली सोलली एक रिग्रेशन के ऊपर एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं कि अगर हमने एक रिसर्च इक्वेशन कंसिडर की है और उसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल स्टडी हो रहा है, तो उस एक वेरिएबल की बेसिस के ऊपर हम किस तरह से ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग कर सकते हैं, और उस ग्राफ के ऊपर जो प्लॉटिंग की है उसका क्या मतलब है, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, और उसके वो जो लाइन हमने इरेक्ट की है रिग्रेशन लाइन, उसकी रिलेशनशिप हमें क्या चीज़ शो करती है वेरिएबल्स के दरमियान में. So that is all for today. Inshallah, we'll meet in the next lecture when we'll be discussing any other interesting topic of quantitative business analysis. Thank you so much for this time. Allah Hafiz.